थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, मिलेगा जरूर। इसको सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए कमेंट्स ड्राइव में दिखाओ वहाँ जहाँ देखे घर पास होल स्टेट ऑफ की क्वाड्स में
some of these folds may be थोड़ा सा इसको देखिए, you are able to see, maybe like this you see, ये वाला ऐसा, हाँ हाँ, नहीं इसका अंदर ये तो मैं वही देखा रहा है, इसमें कौन सा है नेगेटिव, हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है ये वाला, ये वाला थोड़ा सा टर्न हो गया, ये इधर आ रहा, ये थोड़ा सा देख लो ये वाला को, ये वाला फोल्ड को, ये वाला फोल्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, देख रहे हैं ना? ये वाला पोर्शन, इवन हियर, यहाँ देखिए यहाँ मुड़ रहा है, इसे आपको निकालना पड़ेगा, इधर भी होगा, you will be this time you will see right in the field itself, don't worry, but you should have the idea, you know, what is it different. ऐसे देख लेना अभी इस पर फील्ड में जाके, और ये आस्था is coming with you, she will also show you. Anyway, आओ तुम्हारे पास है नहीं अभी, अम्मा जी, mostly these are all shear zones. ना और नहीं है, ठीक है, इतना देख लेना फील्ड में, but you will get many digmatic folds in the field, उसमें से डाउट नहीं है। अच्छा, ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, so this equation we have dealt with, yeah? These two will see. So these two equations I'm writing, yeah? These two equations आप लिख के रखो, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और what do you write? Formation reaction. What do you write formation? In one case it is from phlogopite, the other case it is from biotite. So one is phlogopite, another is biotite. Phlogopite is magnesium biotite, isn't it? Arnite and phlogopite. And biotite, here it is both magnesium and iron, both are existing. So what does it indicate? So this is a magnesium biotite, isn't it? Magnesium rich. आपने देख लो पहले वाला जो दिया था फ्लोगोपाइट का क्या कंपोजिशन, इज इट मैग्नीशियम रिच, अनाइट एंड फ्लोगोपाइट, अनाइट इज आयरन and phlogopite is magnesium. So this magnesium, if it is from phlogopite, which is magnesium rich, yeah? So this produces a magnesium cordierite, magnesium rich cordierite. If it is from biotite, this one, it is biotite iron cordierite. If it is from biotite, it is iron cordierite. मतलब बात समझे नहीं समझे?
Those two equations are telling this. So where does Cardierite appears in your demographic plot? Here is your sillimanite. Garnet is here. Cardierite is here. Cardierite is here. Biotite is here. On the FM side. So this is a chemography diagram in the granulite phases. Granulite phases के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा? So this is a chemographic diagram plot for granulite phases. Granulite phases पहले जितना ड्रॉ किया amphibolite phases था. In all those cases, earlier जितना हम ड्रॉ किया, biotite was appearing here on the projected side. Remember ना? Earlier, biotite was occurring here, but here it occurs on this face. मेरा बात समझे कि नहीं समझे? Earlier diagram it was below. Now it is on the FM side. The reason is what? In granulite phases, the projection is done from potash feldspar. Granulite phases, the projection was done from potash feldspar because there is no muscovite in the rock. There is no muscovite in the rock. muscovite तो ब्रेक डाउन हो गया ना, तो मेल्ट प्रोड्यूस कर दिया. अभी muscovite है नहीं तो muscovite से प्रोजेक्शन नहीं करेंगे. Amphibolite phases तक we are projecting from amphibolite. Muscovite, that is why the biotite was occurring below. muscovite कहाँ रहता है? muscovite इधर रहता है, बट इसमें कहाँ रहता है? पोटाश फेल्डस्पार इधर रहता है. एक एफ डायग्राम है हम तक की, फेल्डस्पार तो नीचे रहता है, तो वहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसी में एक एफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, ए के एम. यहाँ रहता है muscovite, यहाँ रहता है पोटाश फेल्डस्पार. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो अर्लियर फेसिस जितना पढ़ा यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते थे बायोटाइट को, तो इसलिए नीचे आता था ना. अभी ये नीचे से प्रोजेक्ट कर रहा है, सो इट विल बी ऑन दिस आर्म. यही चीज डिफरेंस मान समझा ना. आप जब एक ऊपर से इसी सब दिस इज द प्लेन, मैं यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट करूंगा, व्हाट विल हैपन? ये प्रोजेक्ट यहाँ समझिए ऐसा है, वो नीचे चला जाएगा ना. जब यहाँ से प्रोजेक्ट करूंगा मेरा पैर के पास से, वही ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द फ्लोर इटसेल्फ. ये फ्लोर में रहेगा, इसलिए बायोटाइट ऑकर्स ऑन दिस आर्म. ये तो प्रोजेक्शन है ना, ओनली प्रोजेक्शन. बायोटाइट यहाँ रहता है, बायोटाइट ये डायग्राम में ऐसे करके ऐसे रहता है, ये डायग्राम में. तो मस्कोबाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा. पोटाश फेल्डस्पार से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका छाई इसका ऊपर गिरेगा ना. प्रोजेक्शन इज जस्ट ए शैडो, इसलिए वो बायोटाइट इधर है. इसका निकल गया क्या? ग्रीन है, हाँ चलेगा ना? ठीक है, ये अंडरस्टूड ना. मैं इसको मिटा देता हूँ. आपको कोई भी एक सेंटेंस सपोज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, मैं इसलिए लिखता हूँ हर सेंटेंस को मैं जो बोलता हूँ. आप मेरे को पूछेंगे बाद में,
with this intention I am writing and the recording is also with that intention. ये सब आप शेयर आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं. कभी डाउट होगा ना, you just send a WhatsApp message also. Absolutely no problem. I will be looking forward to that WhatsApp message. आपका कहाँ डाउट रहा? मेरा बात समझा कि नहीं समझा? उस दिन वो अंकित मेरे को एक पूछा क्वेश्चन, क्योंकि मेटामॉर्फिक क्लास में मेनी थिंग्स आई डू नॉट कवर ना, टाइम ही नहीं है. अभी तो हार्डली 3-4 क्लास बाकी है, उसमें काफ़ी चीज़ कवर करना है. तो दैट ही आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन. तो जो हम लोग जो सिंटेक्टोनिक, प्री टेक्टोनिक, पोस्ट टेक्टोनिक जब पढ़ते हैं ना, तो समटाइम्स क्वेश्चन कम्स. उसमें क्या डिफॉर्मेशन के साथ मेटामॉर्फिज्म हम कोरिलेट करते हैं. तो एक ग्राफ ही वाज शोइंग, इट वाज कमिंग इन द गेट एग्जाम में. ऐसे करके ऐसे है, ऐसे का. अब देखा होगा ये है D1 M1, ये D2 M2, ठीक है रे. ये सब है रीजनल मेटामॉर्फिज्म D2 M2. और ये M3 ये होगा नो रीजनल मेटामॉर्फिज्म. ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को इंडिकेट करता है. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? देन ही इज कुछ मिनरल नाम दे देगा, मस्कोवाइट, गार्नेट, और एक पोटाश फेल्डस्पार, अंडालुसाइट, ऐसे कुछ मिनरल नेम नीचे देता है. तो इसको ऐसे कर देता है, ऐसे करता है. आस्किंग यू टेल मी व्हिच मिनरल इज क्रिस्टलाइज्ड व्हेन. मस्कोवाइट, इधर ही आएगा सर. मस्कोवाइट को बोल देगा M3, है तो नहीं ना. सिमिलरली अंडालुसाइट को बोलेगा आप M3 इज द राइट आंसर. यस सर. तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म पूछेगा. ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आता है. तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू नो. आप कभी ऐसे क्वेश्चन आपका, इफ यू कम अक्रॉस सम क्वेश्चंस लाइक दिस, यू डोंट हेजिटेट टू आस्क मी. Many things I also do not cover in the small time class, you know. इसलिए बोला आपको, इसलिए मैं लिखता हूँ. आपको कोई डाउट होगा अच्छा, ये हो गया आपका. सो प्रोजेक्शन इज फ्रॉम पोटाश फेल्डस्पार इन ग्रानुलाइट फेसिस में. द रीजन यू अंडरस्टूड नाउ, बिकॉज देयर इज नो मस्कोवाइट इन द रॉक. आप कैसे प्रोजेक्शन करेंगे? ओके, नाउ व्हाट इज टेलिंग यू नो, इसका पेलिटिक फील्ड इधर है. दिस इज द पेलिटिक फील्ड. पेलिटिक फील्ड इज टेलिंग, ऐसे एक वो बनाता है, टाई लाइन ऐसे बना देता है. ये गार्नेट, this triangle, these tie lines are only connecting sillimanite, cordierite and biotite. Sillimanite, cordierite and biotite. Sillimanite plus cordierite plus biotite. ये तीनों को कनेक्ट करता ना, गार्नेट को कनेक्ट नहीं करता, तीनों को कनेक्ट करता. अब देखो इसमें भी गार्नेट नहीं है, इसमें भी गार्नेट नहीं है. बायोटाइट से बनता है, इधर फ्लोकोबाइट से बनता है. गार्नेट यहाँ अपीयर नहीं होता है. सो व्हाट ही सेज, दिस कॉर्डियराइट विल अपीयर. दिस इज द आयरन फेरुजिनस सेडिमेंट. Ferruginous sediment. If sediment is ferruginous, then there won't be any garnet in the rock. There will be only sillimanite, cordierite and biotite. तो ferruginous होगा. तो यही ट्रायंगल काम करेगा, यही टाई लाइन्स काम करेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है, सपोज गार्नेट्स आर देयर. सपोज रॉक का अंदर गार्नेट है, आप जब भी जाएंगे अंबाजी हो तो गार्नेट पूरा भरे हुए हैं कॉर्डियराइट के साथ. मेरा बात समझे कि नहीं समझा? सो दिस इज ए डायग्राम फॉर
Mg रिच रॉक, Mg रिच रॉक में कोडियराइट मिलता है. कोडियराइट इज if these two equations you just follow, there won't be any garnet. There is no garnet. No garnet. But rocks has a lot of garnet. Are present. आप थोड़ा point लिख के रखो. So in that case, what he is telling, if you are considering garnet is there, कोडियराइट के साथ, आप इसको कनेक्ट करो करके इस टाई लाइन का रिमूव कर दो, इसको फ्लिप कर दो. गार्नेट्स आर सो मेनी इन योर रॉक. If garnet is there with कोडियराइट प्लस बायोटाइट, मतलब सिलिमेनाइट है या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता. So that will be, the sediment will be ferromagnesian. It will be equally rich in ferruginous sediments as well as magnesian components. जहाँ मिलेगा. Suppose garnet is not there, it is only magnesium electric rock. If garnet is there, there will be ferruginous components. ओरिजिनल रॉक का क्या कंपोजिशन, ये देखो आप यहाँ जाता है ना पूरा. ये क्या है, ये पार्ट क्या है, फेरुजिनस ना. अरे ये AFM ना, AF ना. दिस पार्ट ऑफ पेलिटिक रॉक इज मोर मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम ना. दिस पार्ट ऑफ द रॉक इज फेरुजिनस ना. तो आप पहले वाला इसको जो टाई लाइन आप पकड़ के रखते थे, ये वाला नहीं आएगा ना. garnet free. Suppose garnets are there, that means you have to connect garnet कोडियराइट. ये करेगा तो ये टाई लाइन को ऑफ करना पड़ेगा. सिलिमेनाइट हो या ना हो, but suppose garnet, कोडियराइट and बायोटाइट्स are plenty in the rock, then this is the field. That sediment is rich both in magnesium as well as iron. ये थोड़ा आपको मैं वही लिख रहा हूँ. Sediment is rich in iron and magnesium. तभी जाके गार्नेट के साथ कोडियराइट रहेगा. नहीं तो गार्नेट के साथ कोडियराइट नहीं रहेगा. डिपेंड्स ऑन द पेरेंट कंपोजिशन. समझा कि नहीं समझा? यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग्स विद दिस टू टाई लाइंस, फ्लिप टाई लाइंस. ये टाई लाइन को आप फ्लिप कर देना. ये पहले जो टाई लाइन ड्रॉ किया था इसको निकाल देना, इसको लगा देना. हाँ हाँ वही है. गार्नेट है मतलब सेडिमेंट इज फेरुजिनस. बात उसका वही है. ये फेरुजिनस सेडिमेंट है ना. इस पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीशियम ना. AFM है ना. समझा रे? मैं वही बोलूंगा. ये फील्ड क्या इंडिकेट करता है, रिचर इन एल्यूमिनियम. यही इंडिकेट करता है ना. ये पार्ट है रिचर इन एल्यूमिनियम.